I shall strive for a constitution that releases India from all its thraldom and patronage, where even the poorest of the poor feel that it is their country and they have had some voice in the making of this nation, where people from all community live in perfect harmony. There shall be no place, no room in such an India for a curse like untouchability and the curse of intoxicating drugs and drinks, where both men and women enjoy equal rights. This is the India of my dreams. These were the words of our very beloved Mahatma Gandhi, the father of our nation. This was basically the blueprint that he gave for the constitution. And he had been mentioning this in his weekly journal called the Harijan. And all this blueprint, all this ideology of the constitution was based on simple factors like equality, dignity, harmony, fraternity, and the concept of social justice. So social justice is not just a topic in UPSC. It is something which is going to give you perspection. It is the soul and the conscience behind most of your answers. So hello everyone, I am Kritika. Welcome to Zen Study, where every day we are trying to make education imaginative. And today we will be discussing about one of the lowest hanging fruits in UPSC syllabus, social justice. We might have wondered that there are some students who always tend to get 90 plus marks, and most of the students, I'm talking here about the serious aspirants, most of the students lie in the range of 70 to 80 marks. बट उनमें से कुछ बच्चे डेफिनेटली ऐसे होते हैं जो चाहे जो भी लिखे अपने आंसर्स में 90 प्लस मार्क्स उन्हें मिल ही जाता है. Here I want to share something. If you are writing your mains exam this year and अगर आपने कहीं से भी टेस्ट सीरीज ले रखी है, so if you are getting approximately 100 marks, so you can just relax, keep working hard and you can vouch on yourself that interview का call तो पक्का आएगा. अगर 100 के लगभग आपके मार्क्स आ रहे हैं, so just keep working hard, keep working on your answer writing skills and everything, and आपको definitely interview में call आने वाला है इस बार. So moving forward, how you can enhance your marks, how you can make sure that your mains answers are more inclusive and more appealing to the examiner, we will be discussing about that today. So आज के वीडियो में हम बेसिकली मेंस पेपर 2 में जो सोशल जस्टिस का सिलेबस है उसको डिस्कस करेंगे और कैसे हम इसका यूज कर सकते हैं हमारे रैंक को और इम्प्रूव करने में. अभी फिलहाल हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे कि इंटरव्यू का कॉल आ जाए हमारे लिए. ओके, सो आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे. मेनली व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस सब्जेक्ट, लाइक हाउ क्रूशियल द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस इज फॉर योर यूपीएससी एग्जाम. नेक्स्ट इज हाउ मेनी मार्क्स इट कैरीज, क्योंकि हाँ हमें मार्क्स लाना है, हम पढ़ाई कर रहे हैं ताकि हम कुछ फ्रूटफुल उससे निकाल सके. So how much marks it carries, what exactly UPSC is looking for in your answers. आप जैसे मैंने कहा कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 90 प्लस मार्क्स मिल जाता है क्योंकि उन्होंने वो की जो है वो एक्सट्रैक्ट कर लिया है कि एग्जैक्टली कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें लिखनी चाहिए जिस वजह से एग्जामिनर इंप्रेस होता है. फिर है व्हाट इज द बेस्ट रिसोर्स टू स्टडी सोशल जस्टिस, बिकॉज सोशल जस्टिस के लिए कोई क्लियर कट ऐसे बुक नहीं है. लाइक हम अगर पॉलिटी देखते हैं तो वहां पर लक्ष्मीकांत है, अगर मॉडर्न हिस्ट्री देखते हैं तो वहां पर हमारे लिए स्पेक्ट्रम है या बिपिन चंद्रा है. बट सोशल जस्टिस एक बहुत ही एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है, हम इसको बहुत सारे जगहों से इकट्ठा करके पढ़ते हैं, इसलिए इसकी कोई क्लियर कट ऐसे स्टैंडर्ड बुक मार्केट में अवेलेबल नहीं है. सो आज मैं आपको कुछ रिसोर्सेज बताऊंगी जिसके बेसिस से आप अपने अच्छे नोट्स बना सकते हैं. नेक्स्ट इज द एग्जैक्ट स्ट्रैटेजी, हाउ यू शुड बी स्टडिंग फॉर सोशल जस्टिस एंड हाउ यू कैन मेक दिस वन ऑफ योर स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स. ओके, सो जब हम सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट को देखते हैं, सो सोशल जस्टिस इज समथिंग, बेसिकली सोशल जस्टिस इज वेयर पॉलिसीज मीटिंग एथिक्स and where governance is meeting compassion. Like social justice सिर्फ GS2 का पार्ट नहीं हो सकता. जस्टिस की अगर हम कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना चाहे तो जस्टिस इज द थ्रेड, द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस और द कॉन्सेप्ट ऑफ फेयरनेस. It's that thread or the string
which runs through all our papers. ऐसा नहीं है कि हम GS1 में सोशल जस्टिस का कॉन्सेप्ट नहीं लगाएंगे, वहां पर भी जब हम सोसाइटी पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ विमेन पढ़ रहे हैं इन वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस, हम पॉपुलेशन पढ़ते हैं, अर्बनाइजेशन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हम जस्टिस को हटा नहीं सकते. सेकेंड पेपर में तो है ही, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल जस्टिस सेकेंड पेपर में तो मेंशन ही है. इनफैक्ट जब हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, लीगल एस्पेक्ट्स पढ़ते हैं, लॉज पढ़ते हैं, तो वहां पर भी जस्टिस का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. यू कैन नॉट एक्सक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस फ्रॉम एनी ऑफ योर आंसर्स. इवन व्हेन वी आर रीडिंग आवर पेपर 3, जब हम पेपर 3 की भी बात करते हैं तो वी डील विद इकोनॉमी. हाउ कैन वी एक्सक्लूड द कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस व्हेन वी आर डीलिंग विद इकोनॉमी? जब हम टैक्सेशन की बात कर रहे हैं, या हम जब इन्फ्लेशन की बात कर रहे हैं, जब हम क्लाइमेटिक फैक्टर्स की बात कर रहे हैं, हाउ क्लाइमेट अफेक्ट्स people, the concepts of migration, various schemes when we are discussing, we cannot exclude the concept of social justice. GS पेपर 4 तो पूरा का पूरा justice based है, वो complete पेपर ही है जिसमें हम ethics, morality, detailed concepts of justice के बारे में बात करते हैं. फिर हमारा ऐसे जब आता है, ऐसे ऑल्सो इट्स वेरी, आजकल फिलोसॉफिकल टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो जस्टिस एक कोर कॉन्सेप्ट है, एक कोर फोकल पॉइंट है जिसके बेसिस पर इस टाइप का आपको एक पर्सपेक्शन डेवलप करना है, इस टाइप का आपको एक लेंस डेवलप करना है कि कोई भी चीज आप विदाउट द लेंस ऑफ जस्टिस नहीं देख सकते. So justice, social justice is a very, very important topic, and it becomes very, very crucial when you want to enhance any of your philosophy based questions, any of your philosophy based answers. ठीक है, so आगे बढ़ते हैं. हम आज अब डिस्कस करते हैं मेनली कि कितनी यूटिलिटी है इसके GS पेपर 2 में. तो एवरी ईयर इन द लास्ट 5, 6, 7 years हमने देखा है 2 से 3 क्वेश्चंस मैंडेटरीली सोशल जस्टिस से पूछे जाते हैं. सो अगर 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, मेनली 15 मार्क्स के क्वेश्चंस होते हैं, तो 30 to 45 मार्क्स पक्का से आते हैं. ये GS पेपर, सिर्फ GS पेपर 2 की बात कर रही हूँ. बाकी पेपर्स में भी अगर हम देखें तो मैंने कहा अब जस्टिस का जो लेंस है उसको हटाकर आप नहीं पढ़ सकते. सो इट इज कंप्लीटली इंटरलिंक्ड एंड इंटरट्वाइंड. अब हम थोड़ा सा ट्रेंड देख लेते हैं लास्ट 2023 तक. सो 2023 में 2 questions had been asked. 2022 में there were 3 questions. 21 में 2 questions. 2020 में 3 questions. 19 में 2 questions और 18 में भी 2 questions. So average अगर हम देख रहे हैं तो 2 से 3 questions mandatorily हर साल पूछे जाते हैं. तो that shows कि अगर आपके पास 30 to 45 मार्क्स का अगर आपके पास एक स्टैंडर्ड आंसर ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है एंड यू नो हाउ टू अप्रोच दिस काइंड ऑफ आंसर्स विथ श्योरिटी, सो यू सी लाइक आप कितना आगे बढ़ जाते हैं एवरेज लोगों से. हम कुछ सैम्पल PYQs देखते हैं कि व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द लैंग्वेज बेसिकली इन विच UPSC इज आस्किंग क्वेश्चंस. सो 23 का ये क्वेश्चन देखिए. द राइट्स ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 remains only a legal document without intense sensitization of government functionaries and citizens. Discuss. That means एक balanced approach देना है. जो this act की जिसकी बात कर रहे हैं उस act के बारे में हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए. हम कॉन्सेप्ट ऑफ डिसेबिलिटीज, ट्रांसजेंडर्स, विमेन एम्पावरमेंट, ये सारी चीजें हम पढ़ते हैं जब हम सोशल जस्टिस का सिलेबस अभी डिस्कस करेंगे. तो just look at the question, what kind of question, the language of the question basically. 22 में ये question पूछा गया था कि can civil society and non-governmental organizations present an alternative model of public service delivery? Critically examine. So these are some terms: analyze, critically examine, discuss, comment. So ये तरीके होते हैं कुछ जिसके बेसिस पर UPSC क्वेश्चंस पूछते हैं. हम हमारे आने वाले क्लासेस में, आंसर राइटिंग के क्लासेस में ये सब चीजें और डिटेल में डिस्कस करेंगे. 2020 का ये क्वेश्चन देखिए. Institutional quality is a crucial driver of economic performance. In this context, suggest reforms in civil service for strengthening democracy. Okay, यहाँ पर सिविल सर्विस के बेसिस पर क्वेश्चंस पूछा गया है. How far do you agree with the view that tribunals
curtail the principles of natural justice. अब इस क्वेश्चन को देखो, इस क्वेश्चन को हम कैसे डिटरमिन करेंगे कि ये पॉलिटी का क्वेश्चन है और ये सोशल जस्टिस का क्वेश्चन नहीं है? Because tribunals is something which you study in your polity, but this is your paper 2 का question. तो यहाँ पर concept of natural justice भी है and tribunals के बारे में भी पूछा गया है. So मैंने कहा ना कि आप किसी भी सब्जेक्ट से जस्टिस के कॉन्सेप्ट को हटा नहीं सकते हैं. सोशल जस्टिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन आंसरिंग योर स्टैटिक सब्जेक्ट्स ऑल्सो. ठीक है, तो हमने जितने सारे भी क्वेश्चंस देखे, यहां से हमें क्या समझ में आ रहा है? दैट डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहा है यूपीएससी. आपसे यूपीएससी नहीं पूछेगा किसी एक्ट को देकर के एक्सप्लेन दैट एक्ट. नो, कोई स्कीम के बारे में डायरेक्ट नहीं पूछ लेगा. वो हमेशा उसके बारे में डिस्कस करने को कहता है या क्रिटिकली एनालाइज करने को कहता है कि व्हाट आर द थिंग्स जिसके वजह से इश्यूज है एंड व्हाट आर द वेरियस मेथड्स. अगर आप जस्टिस के पर्सपेक्टिव से मेथड्स सजेस्ट करेंगे कि डिफरेंट मेथड्स क्या है जिससे हम इन स्कीम्स को, हम इन लीगल एक्ट्स को और बेटर कर सकते हैं और एनहांस कर सकते हैं, क्योंकि इवेंचुअली हम चाहते क्या है? व्हाट डू वी वांट टू बिकम? वी आर गेटिंग ट्रेन्ड टू बिकम सिविल सर्वेंट्स. वी आर गोइंग टू सर्व द सोसाइटी. सो अगर जस्टिस का कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है, हम अगर लोगों को फ्रॉम थ्रू द लेंस ऑफ एम्पैथी देख ही नहीं पा रहे हैं, तो हम कैसे उनको सर्व करेंगे? और इवेंचुअली गवर्नमेंट भी क्या चाहता है? एक वेलफेयर स्टेट बनाना, क्योंकि वो हमारे डीपीएसपी में भी मेंशन्ड है आर्टिकल 38. सो वेलफेयर स्टेट बनाने के लिए गवर्नमेंट कम्स अप विद वेरियस स्कीम्स, वेरियस सब्सिडीज, वेरियस प्रोग्राम्स. तो वो प्रोग्राम्स ग्राउंड लेवल पर किस तरीके से इंप्लीमेंट करने हैं, कौन से पॉलिसीज लाने हैं, ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके सोशल जस्टिस से आएंगे. ठीक है, तो जो क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं वो थोड़े डायनामिक फॉर्म के क्वेश्चंस होते हैं. इट्स नॉट वेरी डायरेक्ट, नॉट टू द पॉइंट, बट इट इज वेरी इजी टू अटेम्प्ट. आपने अगर सोशल जस्टिस को प्रॉपरली पढ़ लिया है, अगर आपके पास आपके नोट्स रेडी हैं, तो इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना इट्स वेरी इजी. यू विल डेफिनेटली गेट गुड मार्क्स, बट अगेन व्हेन यू आंसर थ्रू द आईज ऑफ सोशल जस्टिस. अब चलिए हम सिलेबस देखते हैं. मेनली जो हमारा यूपीएससी का सिलेबस है जीएस पेपर 2 का, उसमें सोशल जस्टिस को क्या क्या डिफाइन किया गया है, क्या क्या हमें पढ़ना है. So the first is government policies and interventions for development in various sectors and issues arising out of their design and implementation. मतलब सिर्फ आपको ये नहीं बताना कि क्या स्कीम आया है, स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके फीचर्स क्या है, उससे रिलेटेड इश्यूज क्या है, उसके डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन में ग्राउंड लेवल इश्यूज क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसको डिस्कस करना है और उसको लिए वे फॉरवर्ड आप क्या सजेस्ट कर रहे हैं. फिर डेवलपमेंट प्रोसेसेस एंड डेवलपमेंट इंडस्ट्रीज सच एज NGOs, self-help groups, civil societies, various CSR responsibilities which we are carrying out. So ये सारी चीजें इस पार्ट में आती हैं. Next is welfare scheme for vulnerable sections of the population such as women, transgenders, disabled people, geriatrics care, old age care, उन सब चीजों की बात करते हैं. So this is about the vulnerable section. Even the children and the youth, because they are naive, वो मासूम होते हैं, तो उनको बरगलाना, उनको बहकाना बहुत आसान हो जाता है, इसलिए दे ऑल्सो बिकम पार्ट ऑफ द वल्नरेबल सेक्शन. ठीक है, तो इनसे रिलेटेड कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, बॉडीज हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं या ऐसे ऑटोनोमस बॉडीज हैं, उनके बारे में भी हमें पढ़ना है. फिर इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ सोशल sector or social services relating to health, education, human resource and issues relating to poverty and hunger. So this is your syllabus which is mentioned in GS paper 2. तो ये सारे टॉपिक्स, ये सारे कीवर्ड्स जो है, इनके बेसिस पर आपको एक प्रॉपर होलिस्टिक नोट्स बनाना है. नोट्स कैसे बनाएंगे? आप किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टैंडर्ड मटेरियल उठा लीजिए, आपको वहां से एक बेसिक गाइडलाइन मिल जाएगा. हमारे पास भी इसके नोट्स अवेलेबल है. सो इफ यू वांट वी कैन शेयर आवर नोट्स विथ यू इन पीडीएफ फॉर्मेट. तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिए अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो हम आपको फ्री में आपको ये पीडीएफ अवेल करवाएंगे. ठीक है, सो लाइक इट हैज बीन मेड बाय मी. मैंने खुद बहुत मेहनत करके सोशल जस्टिस का नोट्स बनाया है. इट इज वेरी इन अ वेरी क्रक्स फॉर्मेट, सो मेक श्योर दैट यू अवेल दिस. So DM in the comment box that you are looking for the social justice
notes. ठीक है, so this is what is the syllabus that is mentioned. Now moving forward, what are the standard sources? There is no standard source. Sorry to break that myth, but there is no standard source, but there are various varied sources जहां से आप नोट्स अपने बना सकते हैं. पहली बात, जो अगर स्टैटिक से रिलेटेड आपको नोट्स चाहिए, स्टैटिक पार्ट से ऑल्सो लिंक्ड विथ करंट अफेयर्स, बिकॉज सोशल जस्टिस, जैसे मैंने आपको कहा, बहुत ही डायनेमिक टॉपिक है. तो इसका क्लियर कट कोई स्टैंडर्ड ऐसे बुक तो है नहीं, आपको मार्केट में ऐसे कोई बुक नहीं मिलेगा जिसमें सिर्फ सोशल जस्टिस डील की गई हो. सो आपको अपने खुद के अच्छे नोट्स बनाने पड़ेंगे. बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स जो भी नोट्स प्रोवाइड करते हैं, आप उनका हेल्प ले सकते हो, आप हमसे नोट्स ले सकते हो, एंड देन कीप बिल्डिंग ऑन इट. यू नीड टू कीप अपडेटिंग योर नोट्स. हर दूसरे तीसरे दिन कुछ कुछ अपडेट्स आते रहते हैं न्यूज़पेपर में. सो न्यूज़पेपर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. एवरी डे यू हैव टू फॉलो योर न्यूज़पेपर, क्योंकि उसमें बहुत एडिटोरियल्स आते हैं. आए दिन कुछ ना कुछ एडिटोरियल सोशल जस्टिस के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड रहता ही है. भले वो मैनुअल स्कैवेंजिंग पर हो, भले वो विमेन वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन पर हो, वो ओल्ड एज केयर पर हो, वो बच्चों से रिलेटेड किसी स्कीम्स के बारे में हो, या एनी काइंड ऑफ स्कीम. बिकॉज स्कीम्स तो जितने सारे स्कीम्स बनते हैं वो वल्नरेबल सेक्शन के लिए ही बनते हैं, राइट? सो एनी काइंड ऑफ स्कीम के बारे में डिस्क्रिप्शन, डेफिनेशन, एक एनालिसिस एडिटोरियल में हमेशा रहता है. सो वी नीड टू कीप एन ओपन आई, वी नीड टू बी प्रूडेंट इन दैट कि हमको क्या क्या चीजें उठानी है, क्या क्या पढ़नी है, और कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमें हमारे नोट्स में डालना है. सो न्यूज़पेपर बिकम्स योर नंबर वन सोर्स. नंबर वन सोर्स अगर आप मुझसे पूछे तो एनी न्यूज़पेपर दैट यू आर फॉलोइंग, वेदर इट इज इंडियन एक्सप्रेस और दी हिंदू, सो नंबर वन सोर्स बिकम्स योर न्यूज़पेपर. उसके बाद क्या आता है, सेकंड ARC रिपोर्ट का जो सोशल कैपिटल, पब्लिक ऑर्डर एंड लोकल गवर्नेंस वाला चैप्टर है, दैट इज इंपॉर्टेंट. इट इज गिवन इन मच डिटेल, बट आई विल सजेस्ट कि आप उसको अच्छे से पढ़ें, क्योंकि वो किस तरीके से गवर्नमेंट को, किस तरीके से डिपार्टमेंट्स को अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस लाने चाहिए उसके बारे में बताता है. तो उसको अच्छे से पढ़िए. फिर जो बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है वो है योजना एंड कुरुक्षेत्र. अब योजना एंड कुरुक्षेत्र मैगजीन है जो कि हर महीने आता है. आप अगर पढ़ना नहीं चाहते हैं, वैसे आई वुड सजेस्ट कि अगर आप खुद से होलिस्टिक प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ये दोनों मैगजीन, आपको महीने में एक मैगजीन आती है, पढ़ लेना चाहिए. पर इसमें जो भी स्कीम मेंशन्ड रहता है वो उस साल के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि वो जरूरी नहीं है जो स्कीम है वो तभी इंप्लीमेंट किया गया हो, मतलब तभी लाया गया हो. कुछ स्कीम्स ऐसे होते हैं जो बहुत साल से चल रही होती है, पेरिनियल स्कीम्स हो गई, जैसे मनरेगा हो गया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो गया, मातृवंदना हो गया, उज्ज्वला हो गया. तो हम अक्सर, गवर्नमेंट कीप्स ऑन कमिंग विद दिस स्कीम्स. आयुष्मान भारत योजना हो गया, इंद्रधनुष स्कीम जो है. सो वेरियस टाइप ऑफ स्कीम्स गवर्नमेंट कीप्स कमिंग विथ. पुराने स्कीम्स ही होते हैं पर उसमें कुछ एड ऑन करके एक नए नाम से प्रेजेंट कर देते हैं. तो जरूरी नहीं है कि स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव्स, विजन, फीचर्स चेंज होंगे. ऑलमोस्ट सारे स्कीम्स अगर आप देखेंगे तो इवेंचुअली उसका काम यही है कि हमको एक वेलफेयर स्टेट बनाना है, हमें वल्नरेबल सेक्शन जो है उनको केटर करना है. सो ऑब्जेक्टिव, फीचर्स सब एक होते हैं. मेन कहाँ अब दिक्कत आती है उसके इश्यूज और इम्प्लीमेंटेशन में. वो भी हम हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम्स को अगर ज्वाइन करेंगे तो वहां पर मैं आए दिन बच्चों को बताती रहती हूँ कि कैसे हमको लो हैंगिंग फ्रूट्स आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे आंसर्स बिल्ड करने हैं स्क्रैच से. सो प्लीज आप हमारी कम्युनिटी से जुड़िए, जहां पर मैं अक्सर आई कीप टेकिंग मेंटरशिप सेशंस वेयर आई कीप टेलिंग स्टूडेंट्स. हमारे बाकी टीचर्स भी जो है वो मेंटरशिप सेशंस लेते हैं, वो बच्चों को बताते रहते हैं कि किस तरीके से उनको अपने आंसर्स को और एनहांस करना चाहिए रिलेटेड टू देयर रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स. ओके, नाउ PRS एंड PIB से रिसेंट कई बार ऐसे रिलीजेस आते रहते हैं जिसका आपको यूज करना चाहिए, जिसको आप एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. वी प्रोवाइड डेली current affairs analysis and editorials in the form of long articles, means editorial analysis in the form of long articles and short articles. So please keep visiting Zen Studies website. वहां पर आपको every day updated current affairs, updated topics, issue related topics मिलते रहते हैं. तो आप उसको अवेल करिए, आप उसको पढ़िए. सो ऑल दीज थिंग्स हम कोशिश करते हैं कि हम इन सारे जगहों से कंटेंट एक्सट्रैक्ट करके हम अपने जो भी अपडेट्स डालते हैं करंट अफेयर्स में उसको
डालते रहें, तो आपके लिए पढ़ना इजी हो जाए, आपको हर बार इन सारे सोर्सेज को विजिट नहीं करना पड़े, आप हमारे वेबसाइट पर विजिट करके भी ये सारे सोर्सेज एक साथ एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो शायद सब बच्चों को नहीं पता होगा, एनसीईआरटी के क्लास 11 एंड 12 के सोशियोलॉजी का जो बुक है, सोशियोलॉजी एज अ सब्जेक्ट 11 एंड 12 का जो बुक है वो आप डेफिनेटली खरीद लीजिए। जरूरी नहीं कि आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी होना चाहिए, सोशल जस्टिस के पर्सपेक्टिव से एंड इंडियन सोसाइटी को समझने के लिए एक बहुत ही बेसिक बुक है जो एनसीईआरटी का बुक है, वेरी वेल मेंटेन्ड, वेरी वेल क्यूरेटेड, द कंटेंट इज वेरी वेल इनैक्टेड। सो आप उसको अच्छे से पढ़िए, इस एनसीईआरटी के बुक को 11 एंड 12 को, तो सोसाइटी का कॉन्सेप्ट, जस्टिस का कॉन्सेप्ट आपको हल्का फुल्का समझ आएगा। इट इज नॉट एब्सोल्युटली लाइक डायरेक्टली रिलेटेड टू सोशल जस्टिस, बट ये आपको एक पर्सपेक्टिव डेवलप करने में बहुत अच्छे से हेल्प करेगा। फिर हमारे बहुत सारे ऐसे मिनिस्ट्रीज हैं जो कि सोशल जस्टिस से रिलेटेड है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड empowerment, ministry of women and child development, ministry of tribal affairs, क्योंकि ट्राइबल्स भी एक पार्ट है आपके सोशल जस्टिस का, क्योंकि ट्राइबल्स भी वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं। सो ट्राइबल्स से रिलेटेड भी अगर अपडेट्स लेने हैं तो आप मिनिस्ट्री, जितने सारे मिनिस्ट्रीज हैं जो कि रिलेटेड है इनसे, हमारे जो भी हमारा सिलेबस का जो भी मेन एजेंडा है, जो भी मेन कीवर्ड्स हैं, उनसे रिलेटेड जो भी मिनिस्ट्रीज हैं उनके रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं। नीति आयोग है, उसके रेगुलर अपडेट्स आते रहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को लेकर। सो कीप रीडिंग दोस। हाँ, एंड यस, यूपीएससी है, प्रेपरेशन करना है तो मेहनत करनी पड़ेगी, हमको कंटेंट अपना एनरिच करते रहना पड़ेगा, क्योंकि इवेंचुअली व्हाट वी वांट इज वी वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड, एंड these are the places, these are the basically chances where we have the opportunity to stand out in the crowd, वरना हम सारे लोग ऐसे ही एवरेज आंसर्स लिख के ही अपने आंसर्स खत्म कर देंगे। So this was basically about your syllabus, your source and how you should strategize basically जब भी आप note making करते हैं social justice के बारे में। Very soon I'll try to come up with some discussion videos related to your mains answer writing, how we can make a good answer. So thank you for watching this video. In case you have any doubt related to UPSC preparation in any topic, please feel free to contact us. We are also running our community जहाँ पर peer preparation, मतलब peer groups के साथ आप prepare कर सकते हैं। हमारा चैनल है, आप हमारे Zen Study के चैनल को ज्वाइन करिए, आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, आप हमें Instagram पे फॉलो करिए। We are spread all across the social media. So please make use of this opportunity. Try to make your आपकी जो भी जर्नी है यूपीएससी के, इसको मीनिंगफुल बनाइए, इजी बनाइए, हमारे साथ जुड़िए, क्योंकि हम आए दिन मेहनत कर रहे हैं बच्चों के पास कंटेंट पहुंचाने की, बच्चों के पास इनोवेटिव टेक्निकल तरीका पहुंचाने की ऑफ प्रेपरेशन। सो प्लीज ट्रस्ट अस इन दिस प्रोसेस एंड ज्वाइन द zen study channel, जो हमारा व्हाट्सएप का चैनल रन कर रहा है। वी विल पिन द लिंक ऑफ दैट कम्युनिटी हमारे कमेंट बॉक्स में। सो ज्वाइन द चैनल and stay updated related to UPSC preparation. Thank you so much for watching this video. See you in the next video.